आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शहीद भुट्टो फाउंडेशन के ज़रिए इस्तेमाल इंसानी हकूक़ की आगाही के मुतालिक एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात ने अपने हालात का इजहार किया है। ऐसे आगाही के प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज ह्यूमन राइट्स डे है। बिलावल जरदारी भुट्टो यहाँ पे ज़ैबिस्ट आए हुए हैं। वो एक यूथ का फेस है, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज वो आए हुए हैं, इस सेशन में बात करने के लिए आए हैं, ह्यूमन राइट्स पे बात करने के लिए आए हुए हैं, एंड वी आर रियली ग्लैड टू हैव हिम हियर एट द कैंपस. Ahmed Hamza, I'm from BBA section of this university, and I think that's a really good initiative from Bilawal Bhutto that he came here and he's not only doing this for the party but also for the people here around there. Look, everyone's so happy here right now. That like a lot of them acknowledge him, a lot of them admire Bilawal Saab. So I think that's a really good initiative. Moreover, as he last time in his last press conference, he said about Kashmir issue. That's really good, and a young politician like Bilawal Saab, so they need a gut to talk about Kashmir on such a huge forum. तलबा तालबात ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंस्टीट्यूट में आमद को खुशाइन करार दिया। To contribute and ask questions or have a candid discussion with the chairman of PPP, and Zabist being the institute that was founded on the notion that it was an Awami voice that mattered. So I think if it could be more interactive, that would be appreciated. But nonetheless, I hope that whatever discussions they're having are going to be worthwhile. Assalamu alaikum. My name is Tainiyat. I'm from BBA 8 and it's been 4 years I have been into this university. Bilawal Bhutto Zardari is a representative, is somebody who is a representative of youth. So I would like to say on this on this Human Rights Day that it's a very good initiative that he has taken, that he has came out from all security and he has came to the university. Bullying is one issue that is going on in universities a lot. So I think that it's the prerogative of all the representatives who are in parliaments or the celebrities or whoever they are. I think that it's very good. They should take this initiative. They should come out. They should, say that acid attack is not okay, sexual harassment is not okay, rape is not okay, kidnapping is not okay. And especially like 3 days ago, a girl was kidnapped in Karachi. So I think that it is a high time that all the celebrities should come out, and these are those people that who have a lot of power. So I think that these people should come out and say that these things are not okay, and we are in this part of the world. This is the 21st century, and it's not okay to kind of kidnap somebody. It's not okay to kind of put influence on somebody. It's a free world. Just live and let live. Thank you. जबकि कुछ तालिबात ये भी शिकवा करती नजर आई कि हमें मालूम ही नहीं ये सेमिनार किस मकसद को है। हमारे भी बहुत से सवालात हैं, लेकिन हमें इंतजामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। Bilawal is in the house today, and I think he's here for the students. I hope he's here for the students, but the fact is the students of the university are roaming in the ground, and I don't understand who are the people he's talking to right now. I mean, because I want to be in there, I want to ask questions, I want to interact, but I'm not part of it as बहुत ही डिस्टेंस से हमें रोक लिया गया है, हमें पास भी नहीं जाने दिया गया, एंड आई हैव दिस लिटिल इशू with the event right now because I want to participate, I want to talk related to the human rights, and I had so many questions to ask related to the issues that the recent issue happened in Karachi, but I'm not part of it. Unfortunately, I cannot ask anything. Thank you. Today I want to discuss about Bilawal Bhutto's initiative to come here at Zabist University. As you can see, usually in most private universities, the basic co-owners don't come here for responses and for the celebrations. I like that part that he motivated the students here, but there is one thing I disagree upon that he didn't meet us as we should wanted to meet him, because yes, I can understand there are many other problems here that students can do other things, but I wanted him to give us a speech so he can buck up us, and I like that he started, his grandfather started this Zabist University initiative, and this university has progressed a lot since last 25 years. My name is Aisha और हम Zabist University के मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। Zabist University बेसिकली कहते हैं कि पीपल पार्टी से और सिंध से आई हुई है, लाइक इसका बैकग्राउंड जो है, कल्चर सारा वो सिंध से है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगी।
दूसरी बात, सबसे पहले लोग ये बात बोलते थे कि सिंध का जो कल्चर है बेसिकली वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये एक नेगेटिव आप कह लो या पॉजिटिव पॉइंट आप कह लो, ये बिल्कुल गलत है कि कहते हैं कि पीपीपी यहाँ पे चल रही है, भुट्टो फैमिली और ये सब दिस एंड दैट, ये गलत है। दूसरी बात, अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट से देखें कि आज बिलावल भुट्टो यहाँ पे आए हैं, इससे पहले आसिफा भुट्टो भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने ये बातें, इस यूनिवर्सिटी में ये लोग कहते हैं कि आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो का पीछे से बहुत ज़्यादा ना सेटअप चल रहा है। कभी कभी ये बात सही भी होती है, कभी कभी ये बात गलत भी हो जाती है, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से लोगों ने पानी बारिश के नारे लगाए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि हम लोगों को अभी तक ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही पॉलिटिशियंस को, कि वो लोग आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो लोग आपको डिफेंड या इस तरह आपके वो फेवर में बात नहीं कर रहे, वो लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आप लोग इस बात को लाइक वेव कर रहे हैं और उसको जेंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? इंस्टीट्यूट पहुंचने पर उनको बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और तालबा तालबात ने जीए भुट्टो के नारे भी लगाए, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनको हाथ हिलाकर अस्सलाम वालेकुम कहा। सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इंसानी हकूक पर किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी नई नस्ल को आज़ादी इज़हार ख्याल के मुतालिक आगाही देनी चाहिए। पार्लियामेंट में कोई किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ चोर डाकू कहकर गाली दी जाती है। इन हालात में किसी मुआशरे की तरक्की नहीं हो सकती। हर जगह हमारा बुनियादी हकूक पे, हमारा बोलने के आज़ादी पे हमले हो रहे हैं। हमारा जो प्रेस का किरदार होता है किसी भी रियासत में, प्रेस का किरदार यही होता है, एक आज़ाद प्रेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ये होता है कि आपने ताकतवर को अकाउंटेबल रखना है, मुझ समेत हर तबका को अकाउंटेबल रखना है। और अगर हम इस राइट पे, इस बुनियादी हकूक पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हम बेहतरी की तरफ भी नहीं चल सकते हैं। किसी भी सोसाइटी में अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी नहीं सुनने के लिए तैयार होते हैं तो फिर हम अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए सही फैसले भी नहीं ले सकते। अगर यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू हियर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, एंड दैट्स द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि आप जब व्हेन यू हियर ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, हर मौक़िफ़ को, हर पोजीशन को आप सुनते हो, फिर उनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन निकलता है या उनमें से जो मुख्तलिफ राय है, उनमें मुख्तलिफ राय में से जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो फैसला बन जाता है, उस पर कंसेंसस बन जाता है, उस पर सारे स्टेक होल्डर्स का एक बाय इन हो जाता है, और फिर इन मोस्ट सिचुएशंस दैट एंड्स अप बीइंग द बेस्ट सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। एंड आज जब मैं पार्लियामान में खड़ा होता हूँ तो उस पार्लियामान में कोई और किसी और का बात सुनने को तैयार नहीं होता। आप सिर्फ चोर डाकू लुटेरे के गाली देने को तैयार होंगे तो हम इस मुल्क के अवाम के मसाइल कैसे हल कर सकेंगे? कैमरामैन इरफान हैदर के साथ शहजाद मलिक, रोशन पाकिस्तानी, इस्लामाबाद।